السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری بات ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک دو تین دن سے ہم حرکات کو ہم مشق کیے، اس کے بعد حروف مادہ یعنی زبر کے بعد خالی الف مادہ، زیر کے بعد جزم والا یا مادہ، اور پیش کے بعد جزم والا واو مادہ، الف مادہ، یا مادہ، واو مادہ، اور اسی کے ساتھ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کا بھی ہم مشق کرائے۔ اور کل ہم حروف لین کو بھی پڑھ لیے۔ حروف لین کتنے ہیں؟ دو ہے۔ زبر کے بعد جزم والا واو، نام کیا رکھا؟ واو لین، اور زبر کے بعد جزم والا یا، نام یا لین۔ اور آج جو ہم مشق کیے وہ ہے جزم اور تشدید اور آخر تنوین۔ اب ہم آج آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ایک آسان طریقہ، یعنی اب قرآن کس طرح پڑھیں گے، تو اس کے لیے میں آپ کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ قرآن پاک میں جو 6666 کم و بیش آیاتیں ہیں، اکثر آیاتوں کی جو شروعات ہے وہ زبر زیر پیش سے۔ چند آیات جن کی شروعات کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، وہاں ہم کیا کریں گے؟ چند آیات آپ کو ملے گی کہ پہلا حرف خالی ہے، تو کیا کرنا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب راستہ معلوم نہیں تو کیا کرنا؟ پوچھنا۔ پہلا حرف خالی ہے تو کسی سے پوچھنا، بات ختم ہو گئی۔ ہم بھی بتائیں گے، جب قرآن شروع کریں گے تو ہم بھی بتائیں گے۔ اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے تو پھر اس کو، آج کا جو سوال ہے اور جو اہم بات ہے وہ ہے زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ذرا دھیان سے، آج جلدی نہیں کریں گے، آج قرآن پڑھیں گے، جلدی نہیں ہے۔ زبر زیر پیش اگر ہے، بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے، اگر زبر ہے، دھیان سے دیکھیے، اگر زبر ہے تو اس کے بعد ہم بولی خالی الف کو تلاش کریں گے، اور اگر زیر ہے، تو پھر جزم والا یا کو تلاش کریں گے، اور اگر پیش ہے تو پھر جزم والا واو کو تلاش کریں گے۔ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ چابی ہے، یہاں سے ہلنا نہیں۔ چاول آتے ہی ہم دیکھیں گے دال ہے، زبر آتے ہی ہم دیکھیں گے الف ہے۔ کیا ہے؟ میں آپ کو بتایا تھا بار بار، کیا ہے نہیں دیکھنا، کیا ہے، کیا چاہیے؟ زبر ہے تو خالی الف چاہیے، زیر ہے تو جزم والا یا چاہیے، اور پیش ہے تو جزم والا واو چاہیے۔ ہے تو کیا کریں گے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے۔ پھر کیا دیکھیں گے؟ ادھر دیکھیے، پھر ہم دیکھیں گے کہ جزم یا تشدید ان دونوں میں سے کوئی ہے۔ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتا، دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ دھیان سے سنیے، زبر کے بعد خالی الف اگر نہ ہو، زیر کے بعد جزم والا یا اگر نہ ہو، پیش کے بعد جزم والا واو اگر نہ ہو، تو پھر دیکھیں گے، راستہ نکلنا نا، تو پھر دیکھیں گے جزم یا تشدید میں کوئی ہے۔ وہی دو، آپ کو بات یاد ہے؟ میں آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم 6 چیز کو تلاش کریں گے۔ زبر کے بعد خالی الف مادہ، زیر کے بعد جزم والا یا مادہ، اور پیش کے بعد جزم والا واو مادہ۔ پہلے ہم ان 3 کو تلاش کریں گے۔ اگر یہ 3 ہے تو کھینچیں گے، اور اسی طریقے سے اگر شروع میں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے تو وہ کل کتنے چیز ہو گئے؟
अब चूंकि खड़ा जबर खरे जेर उल्टा पे उसको आप खींच लेंगे, उसने हमने उसको छोड़ा, वो तो आपको आता है। अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा बुनियाद है। मैं आपको बार बार मिसाल दिया था कि आप चावल भी खाते हैं, आप रोटी भी खाते हैं, लेकिन पसंद हमें चावल है, तो हम सबसे पहले किसकी तलाश करेंगे? और ना हो तो फिर रोटी की। इसलिए हम कुरान जब शुरू करेंगे, सबसे पहले जो हम तलाशी लेंगे या तलाश करेंगे वो अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा की है तो, और नहीं है तो फिर देखेंगे जज़म या तशदीद में कोई है, जज़म या तशदीद में कोई है। अगर जज़म है तो मिलाकर पढ़ेंगे एक बार, मिलाकर पढ़ेंगे, ध्यान से मिलाकर पढ़ेंगे एक बार, मिलाकर पढ़ेंगे एक बार। और आगे कौफ तो बा जीम दाल पर जज़म हो तो कलकला भी करेंगे। जज़म के साथ ये बात याद रखना, अगर जज़म है किसी भी हरफ पर जज़म हो, चाहे वो अलिफ पर तो जज़म नहीं होता नहीं होता, तो फिर वो क्या हो जाता? हमजा हो जाता है। इसलिए अलिफ को छोड़िए, बचा 28, 20 पर 8। उन 20 पर 8 हुरूफ में से ये 5 कौफ तो बा जीम दाल, इन पर जज़म है तो मिलाना भी है और खलखला भी है। और बाकी जो 23 हुरूफ है, यानी ये छोड़कर बाकी, उनको सिर्फ मिलाना है। अब आसान बात आप जहन में रखिए, अलिफ को छोड़कर जितने हुरूफ है सब पर जज़म आ सकता, जबर भी आ सकता, जेर भी आ सकता, पेश भी आ सकता, सब कुछ आ सकता। अब हमारा जो सवाल इस वक्त है वो है जज़म। 28 हुरूफ में से किसी पर भी जज़म है तो हम पहला काम, बस खत्म। कौफ तो बा जीम दाल पर जज़म है तो कलकला भी करेंगे, बस ये बात आपके जहन में हो। और तशदीद हो तो मिला कर पढ़ेंगे 2 बार, तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे 2 बार, तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे 2 बार। और ध्यान दीजिए, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना भी करेंगे, मिलाकर 2 बार भी पढ़ना और गुन्ना भी करना। बात को जरा एक नजर जहन से देख लीजिए। जब हम कुरान शुरू करेंगे, अब लोग अब होश में आ जाइए, जब हम कुरान शुरू करेंगे या कुरान का कोई भी आयत, कोई भी टुकड़ा या अरबी जबान का कोई भी जुमला, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य अगर हम शुरू करेंगे तो उसके शुरू में अक्सर जबर जेर पेश है, तो हम सबसे पहले उन आयत में अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा, यानी जबर के बाद अलिफ, जेर के बाद या, पेश के बाद वाव को तलाश करेंगे, है तो। और अगर नहीं है तो फिर तलाश करेंगे नंबर 2 जज़म तशदीद। किसको? जज़म तशदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे। अब फर्क इतना, जज़म है तो मिला कर पढ़ेंगे एक बार, कौफ तो बा जीम दाल पर जज़म है तो कलकला भी करेंगे, और तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे 2 बार, नून मीम पर तशदीद है तो गुन्ना भी करेंगे। इतनी बात आ गई ना। अब ये गुन्ना की कुछ अक़साम है, कुछ और भी तरीका है, वो इंशाल्लाह अलग से मैं आपको फुर्सत से बताऊंगा। अच्छा, जबर के बाद अलिफ ना हो, तीसरी बात, जेर के बाद जज़म वाला या ना हो, पेश के बाद जज़म वाला वाव ना हो, तो फिर देखेंगे जज़म तशदीद, तो फिर क्या देखेंगे? जज़म तशदीद। अब सवाल है कि वो भी ना हो, फिर हम जल्दी पढ़ेंगे, खत्म। फिर हम कैसे पढ़ेंगे? फिर हम जल्दी पढ़ेंगे। ये आखिरी रास्ता है, या तो हम खींच कर पढ़ेंगे, या तो हम खींच कर पढ़ेंगे, नहीं तो हम मिला कर पढ़ेंगे, और वो भी नहीं तो फिर जल्दी पढ़ेंगे। इसको मैं एक आसान मिसाल दूं। तीसरी चीज को तलाश करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद तय हो जाता है। मेरे जेब में 3 नोट है, एक 100 का, एक 50 का, एक 20 का। मतलब पीछे से देख रहे सब, वो एक 100 का,
एक 50 का, 20 का, कुछ भी मान लीजिए। अब हमने जेब में हाथ डाले, जेब में क्या डाले, हाथ डाल के जो 3 नोट है ना, उन तीनों नोट में से हमने एक को पकड़े। किसको पकड़े? तीनों में से। नहीं वो तो फिर हमने डाल दिया, उसको क्या देख रहे हैं आप? मैं खुद भी पता नहीं कि मेरे पास क्या है, इसलिए हमने देखा कि है क्या चीज। तो हम तीनों में से एक को पकड़ा। किसको पकड़ा? किसको मालूम नहीं, ये 20 का है, खत्म, ये हमने फेंका। उसके बाद कौन कौन बचा? उन दोनों में से फिर हमने एक को पकड़ा। किसको पकड़ा? मालूम नहीं, 50 का पकड़ा। उस 50 को भी हमने इस जेब में रख दिया। अब फिर हाथ डाल के किसको पकड़ा? अब देखे क्या, आप देखे, फिर कैसे बोला? बचा तो वही ना, बिल्कुल वही कुरान पढ़ने का तरीका। सबसे पहले हम हुरूफ माद्दा, अलिफ माद्दा, या माद्दा, वाव माद्दा को तलाश करेंगे। अगर वो है तो खींच कर पढ़ेंगे। अच्छा वो नहीं तो फिर जज़म तहदीद को तलाश करेंगे, है तो, और वो भी नहीं तो वही तो बचा। क्या बचा? जल्दी पढ़ेंगे, बात खत्म हो गई। यानी हमारे सामने अहम 2 चीज है, या हुरूफ माद्दा को चाहिए, नहीं जज़म तहदीद चाहिए। हुरूफ माद्दा है तो खींच कर पढ़ेंगे, जज़म तहदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे, और दोनों नहीं है तो फिर हम आइए बस समझ में। आपके जो किताब, बड़ी किताब है, उस किताब के आखिर की तरफ देखिए, आखिर की तरफ देखिए, सफ़ा नंबर, मैं भी बताऊँ आपको, सफ़ा नंबर 26, 20 पर 6। यहाँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है सलात यानी नमाज। देख लेना किताब, सलात यानी नमाज, सलात यानी नमाज। हम नमाज बोलते हैं, अरबी में उसको सलात कहते हैं। हम रोज़ा बोलते हैं, अरबी में क्या बोलते हैं? सौम बोलते हैं। ज़कात को अरबी में ज़कात ही बोलते हैं। हज को अरबी में हज ही बोलते हैं। नमाज बोलते, नमाज को अरबी में सलात बोलते हैं। मैं आपको क्या करूँगा, कुरान पढ़ने का तरीका बताऊँगा, लेकिन वो सब दुआ जो हम नमाज में इस्तेमाल करते, हम उनको मिसाल में लाएंगे। तो दोनों बात हो गई ना, कुरान की दुआएं भी हमारे सामने आ गई, कुरान पढ़ने का तरीका भी आ गए। अब ज़रा गौर कीजिए, सफ़ा नंबर 26 में जो लिखा हुआ है सलात यानी नमाज, और उसके नीचे लिखा है 2 रकात सलात में 60 मसाइल। मैं आपको 2 रकात नमाज समझाऊंगा जिनके अंदर 60 मसले होंगे, 60। कितने मसले होंगे? 60। उसमें से ज़रा देखिए, पहली रकात में रुकू से पहले 11 मसाइल। अब जो पहली रकात पढ़ेंगे ना, रुकू से पहले 11 मसाइल है। उनमें से नंबर 1 राइट साइड में देखिए, नंबर 1 हाथ उठाना सुन्नत। क्या तरीका है उसका? तरीका क्या है? मर्दों का अलग, मस्तूरत का अलग। नंबर 2 तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहना फ़र्ज़। अब अल्लाहु अकबर को हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ाएंगे और आपको कुरान पढ़ने का तरीका भी बताएंगे। और उसके बाद देखिए नंबर 3 हाथ बांधना सुन्नत। क्या तरीका है? मर्दों का अलग, मस्तूरत का अलग। उसके बाद सना पढ़ना सुन्नत, इंशाल्लाह एक के बाद दिगर। उसके बाद नंबर 5 तावुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत। उसके बाद तस्मिया, नंबर 6 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना सुन्नत। उसके बाद नंबर 7 सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब। सूरह फातिहा, इसी तरीके से एक एक चीज़, तो इसमें सूरह फातिहा भी आ गई, फिर कुरान की सूरतें भी आएंगी, और नमाज की दुआएं भी, ये सारे चीज़ आते रहेंगे, और हम अपने कुरान को सही भी करेंगे इंशाल्लाह। अब रही बात हाथ उठाने का तरीका क्या है, मर्दों का, मस्तूरात का, हाथ बांधने का तरीका क्या है, ये सारे चीज़ मैं एक तारीख तय करूँगा। और तारीख तय नहीं, तारीख तय ही है, वो जुमेरात है। कौन सा रात है? जुमेरात का जो क्लास रहेंगे बहुत ही अहम। उस दिन हम बुर्खा पहनेंगे। क्या पहनेंगे?
हाँ, पहन के कैमरा में आएंगे और कैमरा में आके आपको भी और मस्तूरत को भी। वज़ू का तरीका मैं वज़ू करके बताऊंगा, गुस्ल का तरीका मैं गुस्ल करके बताऊंगा। आई बस समझ में? पानी से नहीं, मैं यूं ही गुस्ल, आप ये नहीं समझ, तो सर्दी भी हो रही है। तो मैं आपको गुस्ल का तरीका, वज़ू का तरीका, फिर आगे पानी ना हो तो तयम्मुम का तरीका, फिर आगे नमाज पढ़ने का तरीका, फिर नमाज में मर्दों का हाथ उठाने का तरीका क्या, मस्तूरत का तरीका क्या, अलग वो भी बताएंगे। इसी तरीके से हाथ बांधने का तरीका मर्दों का अलग, मस्तूरत का वो भी बताएंगे। रुकू का तरीका अलग, रुकू में बैठने का, वो सजदा में जाने का तरीका और बैठने का करने का तरीका अलग, वगैरह वगैरह सारी चीज़ बताएंगे। लेकिन ये एक चीज़ जो सबसे अहम है कि वज़ू में मर्द मस्तूरत में थोड़ा फ़र्क है, गुस्ल में मर्द मस्तूरत में थोड़ा फ़र्क है, तयम्मुम में भी फ़र्क है और नमाज में तो है ही है। ये सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल कैमरा में खड़े होकर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अब वो दिन आपके लिए बहुत अहम है और मैं तो कहूँगा कि उस दिन जो लोग, हम खास करके ऐलान करते हैं कि बहुत से आपके दोस्त क्यों नहीं आए वो नहीं मालूम है, लेकिन जिन्होंने नमाज की तरतीब नहीं देखा, नमाज पढ़ने का अक्सर लोग, हम जो नमाज पढ़ते हैं ना, हम वही नमाज जो मैंने दादा को देखा, दादा वाली नमाज या नाना वाली नमाज, और हमारी माँ बहनें जो नमाज पढ़ती वो नानी वाली, नानी जैसे पढ़ती थी, माँ वाच पढ़ती थी, माँ जैसे पढ़ती, हम ऐसे पढ़ती थी। और हमने नानी से पूछा तूने किसी सीखा कि उसने कहा हमने नानी से सीखा। नानी नानी करते करते हवा तक पहुँचेगी, कुरान तक उन्हें कोई नहीं पहुँचता है। नानी नानी पूछते पूछते कहाँ तक, माँ हवा तक पहुँच जाएगी कि तुमने कुरान से कुछ है तो नहीं, कुरान और हदीस से नहीं है। तो इसलिए मैं आपको जो तरीका है वो सारी बात बताऊँगा, इसलिए उस दिन बहुत अहम रहेगा। अब अपने दोस्तों को दावत देंगे ताकि वज़ू का, गुस्ल का, तयम्मुम का तरीका जान ले। इसी तरह माँ बहनें भी अपने सहेलियों को उस दिन ख़ास एक दिन के लिए कम से कम बुला ले ताकि उस दिन वो दो चीज़ देख ले, नमाज का तरीका, वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम वगैरह, साथ साथ कुरान कितना ईजी है। अब इसे दावत देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। तो चलिए अब हम नमाज को शुरू करेंगे, उसमें हम कुरान पढ़ने का तरीका भी बताएंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले हम लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लफ्ज़, इसको पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले मुझे बताना कि इसमें सबसे पहला हरफ क्या है? अलिफ है। उसके बाद दूसरा लाम है, उसके बाद तीसरा भी लाम है और चौथा हा है, वो हा जो आखिर में लिखा जाता है। आई बात समझ में? अब आप मुझे बताएंगे जो पहला हरफ है उसके ऊपर हमने क्या दिया, तो ये क्या बन गए? हमजा बन गया। उसके बाद लाम देखिए खाली है, हमने कुछ नहीं दिया। उसके बाद जो दूसरा लाम है ना, जिसके ऊपर हमने क्या दिया? तशदीद दिया। आपको जानना चाहिए यहाँ दो लाम है। कितने लाम है? दो लाम। लेकिन दूसरा जो लाम है जिस पर तशदीद है वही लफ्ज़ अल्लाह का लाम है, वही लफ्ज़ अल्लाह का, वही लफ्ज़ अल्लाह का, वही लफ्ज़ अल्लाह का, वही लफ्ज़ अल्लाह का लाम है। अब आप यूँ सोच रहे कि हम इस बात को बार बार क्यों दोहरा रहे? वो इसलिए, जिस तरह अलिफ कभी पुर, जिस तरह रॉ कभी पुर, इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह का लाम भी, मैं एक बार इशारा दे चुका, अब मैं फाइनल बता रहा हूँ। लफ्ज़ अल्लाह का लाम भी कभी पुर, यानी लाम की आवाज़ को कभी हम बारीक और कभी हम मोटी आवाज़ से पढ़ेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए। और उस लाम के ऊपर ज़रा, अच्छा एक बात, दूसरी बात यह है कि लाम के ऊपर तशदीद है, तो इधर देखिए मिलाकर दो बार पढ़ेंगे, मिलाकर दो बार पढ़ेंगे। फिर उसके ऊपर खड़ा जबर है तो हम उसको खींच कर पढ़ेंगे और हा के ऊपर पेश है। अब जरा हम इन क़वाइद की तरफ ध्यान देते हैं। मुझे सबसे पहले देखना है
कि जबर के साथ अलिफ है या जेर के साथ या है या पेश के साथ वाव है। तीनों में से आपको कोई चीज नजर आ रही? जबर तो है, जबर तो है, मगर अरे बोलो ना भाई, अलिफ नहीं है। इसलिए इन तीनों में से हमें कुछ नहीं मिला। अब हम देखेंगे कि जबर के बाद जज़म या तशदीद में कोई है। तो जरा हमने जबर के बाद देखा लाम को कि वो खाली है। हमें क्या तलाश करना था? जज़म और तशदीद। अरे जबर के बाद, आप बात नहीं समझ रहे, जबर के बाद सबसे पहले हमें तलाश किसको करना? क्या मिला? नहीं मिला। तो फिर हम क्या तलाश करेंगे? जज़म या तशदीद। क्या लाम में जज़म तशदीद है? नहीं मिला ना। अब नहीं मिला, एक चीज दुकान में नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? घर आ जाएंगे। अरे दूसरी दुकान में जाएंगे, इस लाम में नहीं तो दूसरे लाम में जज़म तशदीद है ना, तो उससे बात खत्म हो। या तो तीनों में से कोई एक चीज मिलना जरूरी है, और वो नहीं मिला तो जज़म तशदीद तो होना ही, और वो नहीं होना तो जल्दी पढ़ना फाइनल है। अब इन तीन को जरा समझ लेंगे ना तो पूरे कुरान उसी में है, पूरे कुरान इसी में है। तो हमने जबर के बाद अलिफ को तलाश किया, वो नहीं मिला। फिर हमने जबर के बाद जज़म को तलाश किया, लाम पहले में तो नहीं मिला, मगर तो जब दूसरे से मिला, अब जिस दुकान से चीज मिली हम वहीं से तो लेंगे ना, तो हम उसी को ले लेंगे। मतलब यह है कि हम हमजा को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कितने बार? 2 बार। एक बार जबर के साथ, एक बार खड़ा जबर के साथ। आई बस समझ में? एक बार। तो पहला जो तलफ्फुज है उसको हम कैसे पढ़ेंगे? मिलाकर पढ़ेंगे। याद रखना, कैसे पढ़ेंगे? मिलाकर पढ़ेंगे। क्यों? कि जज़म तशदीद में तशदीद है, दोनों में से आ गए। और दूसरी बार हम पढ़ेंगे खड़ा जबर, और खड़ा जबर को काम आपको मालूम? यहां बोलते नहीं, वो तो आपको मालूम है, लेकिन यहां एक बात और मालूम, चूंकि ये लफ्ज अल्लाह का लाम है, और लफ्ज अल्लाह का लाम कभी पुर कभी बारिक। कब पुर? जब लाम से पहले जबर हो तो पुर। यहां जबर है तो पुर है, और अगर पेश होता तो भी पुर, लेकिन जेर है तो बारिक है। आई बस समझ में? अलिफ लाम लाम हा, याद रखना, अलिफ लाम लाम हा, ये लफ्ज अल्लाह, अलिफ लाम लाम हा, ये लफ्ज अल्लाह, ये लफ्ज अल्लाह का लाम है, वो लफ्ज अल्लाह का लाम है, ये लफ्ज अल्लाह का लाम है। दूसरा वाला निशानी क्या है? ये तशदीद का होना। ये लफ्ज अल्लाह का लाम है, और लफ्ज अल्लाह का लाम कभी पुर कभी बारिक। लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबरिया पेश हो, जबरिया पेश हो, लफ्ज अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, मोटी आवाज के साथ पढ़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात, लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबरिया पेश ना हो, फिर क्या होगा? फिर लफ्ज अल्लाह के लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। तो यहां क्या करेंगे? कोटा पुर, लाम खड़ा जबर अल्लाह, फिर बोले, फिर बोले अल्लाह, अल्लाह। हा के ऊपर पेश है, हा के ऊपर पेश है। आपको क्या चाहिए? जज़म वाला। हाँ, आपको क्या चाहिए? क्या पेश के बाद जज़म वाला वाव है? तो खींचना। जवाब देंगे तो खींचना, तो खींचना, तो खींचना। तो फिर पेश के बाद जज़म तहदीद में कोई है? वो भी नहीं। तो फिर मिलाना, तो फिर मिलाना, खींचना, मिलाना, खींचना, मिलाना। तो क्या करेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हा पेश हूँ, फिर बोलिए
फिर बोले अल्लाहु 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 अल्लाहु। इसमें 3 तलफ्फुज है, लफ्ज अल्लाह में 3 तलफ्फुज है। पहला वाला मिलाकर, क्योंकि जज़म तशदीद में तशदीद है। दूसरा वाला खींच कर, वही 6 अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा, खरा ज़बर खरी ज़ेर उल्टा पेश, उसी क्वालिटी में से है, खींच कर। और दूसरा वाला जल्दी, पहला वाला मिलाकर, दूसरा वाला खींच कर, और तीसरा। पूरे कुरान पाक को पढ़ने का यह तरीका है, या तो हम खींच कर पढ़ेंगे, नहीं तो हम मिलाकर पढ़ेंगे। फाइनल हम जल्दी पढ़ेंगे। अरे बस समझ में, अल्लाहु अल्लाहु। ये मैंने आपको कुरान पढ़ने का तरीका बताया। अब एक चीज थोड़ा अरबी जबान में अहम है, वो दूसरे जबान में नहीं है, उसको जरा ध्यान दीजिए। अल्लाहु अल्लाहु। कुरान पाक जब आप पढ़ेंगे आपको इस तरह की निशानी मिलेगी। इस निशानी को आप आपके जबान में, इंग्लिश में तो कहते कि फुल स्टॉप, क्या बोलते हैं, और आपके जबान में क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, उसको बोलते फुल स्टॉप। अरबी में उसको आयात की निशानी, आयात कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयात। ये पूर्ण विराम क्या होता है? जब बात पूरी होती है तो पूर्ण विराम लेना, रुक जाना, स्टॉप करना। इसी तरीके से जब आयत खत्म होती है ये निशानी आती है। अब हा के ऊपर क्या है? पेश। जब हम पूर्ण विराम लेंगे तो चलेंगे या बैठ जाएंगे? है ना, बिल्कुल। अरबी में वो तरीका है। जब हम आखिर हरफ में रुकना है, कब? ये देखिए कब, जब आखिर हरफ में जबर जेर पेश हो। बस इतनी बात, और भी है, अभी पहले दिन मैं इतनी बात रख रहा हूं। आखिरी हरफ पर अगर जबर हो या जेर हो या पेश हो, तीनों में से कोई आए और वहां ठहरना है, रुकना है, स्टॉप करना है, विराम लेना है, तो सबसे पहला काम पेश को हटाकर बदले में जज़म देना। चूंकि जज़म के माना जिस तरह मिलाना भी आता है, और जज़म के असल माना स्टॉप, रुकना। जज़म के माना ठहरना भी है। जज़म हो तो हमने बताया था मिला कर पढ़ना, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जज़म के माना ठहरना भी है। तो जब आखिरी हरफ पर जबर जेर पेश रहेगा, 3 भी, 2 जबर भी होगा, 2 जेर 2 पेश भी, खरा जबर खरी जेर उल्टा पेश भी, बहुत कुछ आएगा आखिर हरफ पर। लेकिन अभी हमने 3 बात आपके सामने रखी है कि जबर जेर पेश है तो हम उन सब को हटाकर एक बार। दूसरी बात, अलिफ मद्दा कितना खींचना? 1 अलिफ, याद है? या मद्दा खींचना 1 अलिफ, वाव मद्दा, खरा जबर खरी जेर उल्टा पेश, ये सब कितने हैं? 1 अलिफ। यहां जरा गौर कीजिए, खड़ा जबर है, कितना खींचना? खड़ा जबर के बाद हम हा में क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे, रुकेंगे। मसला सुन लीजिए ध्यान से, कायदा। अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा, खड़ा जबर खरी जेर उल्टा पेश के बाद, अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा, खड़ा जबर खरी जेर उल्टा पेश को कितना खींचना? 1 अलिफ। लेकिन खड़ा जबर खरी जेर उल्टा पेश या अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा के बाद अगर ठहरना है, क्यों ठहरना? गोल निशानी, फुल स्टॉप, ठहरना है, तो फिर इसको 1 अलिफ नहीं 3 अलिफ खींचेंगे। 1 अलिफ नहीं 3 अलिफ खींचेंगे। ध्यान दीजिए, हमजा लाम जबर अल, लाम खड़ा जबर और हा जज़म, कुल मिलाकर लो। कितना खींचना? और आखिर में किसकी आवाज आना? अल्लाह। हम उस दिन खींच रहे थे ना,
अरे खींच रहे थे ना इतना, आप सोच रहे कि ऐसे ही खींच रहे क्या? हम ऐसा ही नहीं खींचा, चूंकि यहाँ रुकना है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु। हमें यहाँ रुकना, इसलिए हमने हु पढ़ा, और यहाँ रुकना है इसलिए हम इसको जज़म कर दिया। आई बात समझ में? अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। और आखिर में अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह हमारे लिए रहमत का दरवाज़ा खोलेंगे नहीं खोलेंगे? इसी तरह हम अल्लाह को पुकारेंगे पुकारेंगे। चलिए अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड के तरफ। अल्लाहु तक हम पढ़ लिए ना, अब जरा गौर कीजिए। हमजा के ऊपर जबर है, जबर के बाद अलिफ है या जज़म तहदीद में जज़म है? तो बात खत्म। तो हमजा काफ जबर अक, ये काफ 5 में है या 23 में? तो सिर्फ हमजा काफ जबर अक। फिर बोलिए बा रा जबर बौ, बा रा जबर बौ, अकबर 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 अल्लाहु अकबर। लौ को पूर पढ़ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नमाज के लिए हाथ बांधेंगे तो बोलेंगे अल्लाहु अकबर। रुकू में जाएंगे तो बोलेंगे अल्लाहु अकबर। सजदा में जाएंगे तो बोलेंगे अल्लाहु अकबर। सजदा से बैठेंगे तो बोलेंगे, फिर सजदा में जाएंगे तो अल्लाहु अकबर। इसी तरह नमाज में हमें इस लफ्ज को बार बार बोलना। फर्क इतना है, सबसे पहला जो अल्लाहु अकबर है हाथ उठाते वक्त वो तकबीर तहरीमा है, उसको बोलना फर्ज है। किसी ने अगर नहीं कहा उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। कब शुरू कब होगी? नहीं मैं बोला नहीं होगी कब? जब शुरू होगी।
शुरू ही नहीं होगी। लफ्ज अल्लाह के बगैर नमाज शुरू ही नहीं। इसलिए सबसे पहला जो तकबीर तहरीमा है अल्लाहु अकबर, वो कहना फर्ज है, बाकिया सुन्नत है। अब हम हाथ बांधेंगे, फिर हम दुआए सना पढ़ेंगे। अब दुआए सना की तरफ देखिए। सबसे पहला हरफ, जरा गौर कीजिए, सबसे पहला हरफ क्या है? सीन के ऊपर क्या है? उसके बाद बा के ऊपर, उसके बाद हा के ऊपर, साथ में कौन? उसके बाद नून के ऊपर, उसके बाद काफ के ऊपर। अलिफ को खाली छोड़ दीजिए, लाम को भी खाली छोड़ दी। उसके बाद लाम के ऊपर क्या है और तशदीद के ऊपर क्या है? खड़ा ज़बर। उसके बाद ये हा है, वो बीच वाला हा, और हा के ऊपर क्या है? पेश है। और मीम के ऊपर क्या है? तशदीद है। और तशदीद तो कितने बार पढ़ना? इसलिए और एक ज़बर है। अब हम इसको पढ़ेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि अक्सर आयत ज़बर ज़ेर पेश से शुरू। ये कहाँ से शुरू? तीनों से शुरू। हम लोग का सो रहे क्या? मैं कर अक्सर ज़बर ज़ेर, ये कहाँ से शुरू कर? ज़बर ज़ेर पेश से शुरू। किससे शुरू? आपको क्या चाहिए? भूल गए, अलिफ चाहिए। हाँ, चाय पीने के लिए दाल चाहिए, वही तो बोल रहे हैं। पेश को खींचने को जज़म वाला वाव है तो खींचना नहीं है। गई पहली बात। फिर हम तलाश करेंगे क्या क्या। जज़म तहदीद में कोई है? कौन है? तो फिर मिलाकर पढ़ेंगे। और जज़म किस पर है? ये पांच में तो नहीं है, तो कलकला भी है। मिलाना क्यों? कलकला क्यों? पांच में से बा है। आ गई बस समझ में? इस बा को पिछले हरकत से मिलाना भी, कलकला भी। सीन बा पेश सुब, फिर बोली हा के ऊपर ज़बर है। क्या चाहिए? है तो हुई ना बात खत्म। और दो हरफ याद रखना, दबा कर। एक हा है, एक आइन है। इसको हा अलिफ ज़बर हा, सुबह सुबह। नून के ऊपर ज़बर है और इसके बाद ये काफ है। क्या है? तो ज़बर के बाद अलिफ है, खींचना। ज़बर के बाद जज़म तहदीद में कोई है तो मिलाना। तो क्या करेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। नून ज़बर ना, फिर बोले सुबहाना, सुबहाना। अब आगे देखिए, काफ के ऊपर ज़बर है, अलिफ है ना, लाम भी है, और यहां लाम के ऊपर तशदीद भी है। लेकिन मैं आपको समझाऊं, अलिफ लाम तो है मगर काम का नहीं है, उसको पढ़ना, क्योंकि उसके बाद तशदीद है। तशदीद से पहले खाली हुरूफ को पढ़ा नहीं जाता। और किससे पहले? जज़म से पहले। याद रखना, जज़म और तशदीद से पहले। जज़म और तशदीद से बोलते नहीं, जज़म और तशदीद से खाली हुरूफ को पढ़ा, खाली हुरूफ को पढ़ा नहीं जाता। हम रमज़ान में इफ्तारी में दस्तरखान बिछाकर कितना मिनट पहले बैठते? 5 मिनट, 10 मिनट बैठते नहीं बैठते? जब हम बैठे होते हैं दस्तरखान में क्या क्या चीजें होती नहीं होती? खाते क्यों नहीं? क्यों नहीं खाते? क्या नियत करते? किसकी इंतजार? वक्त नहीं होता है ना। और जब वक्त होता तो क्या करते? तो खाते। आज़ान से पहले हम आरी बस समय में जज़म और तशदीद से पहले खाली हुरूफ को पढ़ा नहीं जाता। अब आप पूछेंगे कब पढ़ेंगे? वो तो मैं आपको मौका मिला तो बताऊंगा।
बस एक बात याद रखना, जज़म या तहदीद से पहले खाली हुरूफ होता है मगर उसको पढ़ा। आज़ान से पहले दस्तरखान में खाने की चीज़ होती है मगर खाया, लेकिन खाएंगे कब? ये अलिफ लम पढ़ेंगे कब? जब आप आलिम बनेंगे, तर्जमा करेंगे तब पढ़ेंगे। इसलिए मदरसे में दाखिल हो जाना, 10 साल के बाद पढ़ेंगे तो पढ़ लेना। आई बात समझ में? बस एक बात याद रखना, जज़म तहदीद से पहले खाली हुरूफ को, यानी मान लीजिए कि जज़म तहदीद से पहले अलिफ लम तो है मगर नहीं। जब नहीं है, अब बताइए कि ज़बर के बाद अलिफ है, क्या है? तशदीद है। तो मिलाकर पढ़ेंगे कितने बार? 2 बार। एक बार पिछले हरकत ज़बर के साथ, एक अपनी हरकत खड़ा ज़बर के साथ। और यहां भी देखिए अलिफ लाम लाम हा, ये लफ्ज़ अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह का, ये लफ्ज़ अल्लाह का। और लाम से पहले ज़बर है तो लाम को काफ लाम ज़बर कल। फिर बोली, फिर बोली, लाम खड़ा ज़बर अल्लाह, कल्लो 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 सुब्हानकल्लो। फिर बोली, हा के ऊपर पेश है, मीम के ऊपर तशदीद है। कैसे पढ़ेंगे और क्या करेंगे? गुन्ना भी करेंगे, चूंकि मीम के ऊपर तशदीद है। और गुन्ना क्या है? नाक में पढ़ना और खींचना। हा मीम पेश हम, मीम ज़बर हम, हम सुब्हानकल्लाह, सुब्हानकल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा। सुबह क्या करना? क्या करना? सुबह कलकला करना। मिलाते आप सारे जिंदगी थे, कलकला कौन करते? जरा हाथ उठाइए। नहीं बस समझ में। सुबह वो 2 4 5 है, लेकिन अक्सर लोग कलकला क्या करते। और यहाँ पढ़ते थे हा को दबाता कौन था? आई बस समझ में। नकल्ला पढ़ते, लो कौन पढ़ते, आखिर में हम गुन्ना कहाँ मालूम है। और अक्सर लोग तो ऐसे ही पढ़ते सुबहानका, वही पढ़ते। अब लोग सवाल दिल में सोच रहे कि नमाज होगी या नहीं होगी। चटनी और रोटी से पेट भरेगी नहीं भरेंगे? अरे भरेगी नहीं भरेगी? और बिरयानी मिले तो किधर बैठेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिरयानी मिले तो उधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे। आई बस समझ में। सुबहानका अल्लाहुम्मा बोलेंगे तो नमाज होगी, वही जैसे चटनी रोटी जैसे होगी। और सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ेंगे तो वो बिरयानी जैसे बेहतर नमाज है। अब से यूं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुबहानकल्लाहुम्मा, फिर बोले, फिर बोले, वाव ज़बर हुआ, बाज़िर भी, ध्यान दीजिए। हामिम ज़बर हम, दाल ज़रदी, काफ ज़बर का, वबिहम्दिका, वबिहम्दिका। यहाँ कोई कायदा नहीं, सिर्फ हा को दबाना, बस इतना याद रखना। वबिहम्दिका, दबा कर वबिहम्दिका। फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले,
आगे देखिए वाव ज़बर वा खींचेंगे इधर देखिए खींचेंगे क्यों अलिफ नहीं है वाव ज़बर वा ता ज़बर ता खींचेंगे क्यों अलिफ नहीं बा अलिफ ज़बर खींचेंगे क्यों वतबा रा के ऊपर तो रा को पूर्व पढ़ेंगे और इसको खींचना नहीं चुके अलिफ नहीं है रा ज़बर रा ज़बर रा देखिए काफ के ऊपर ज़बर है अलिफ है लेकिन सीन के ऊपर जज़म है इसलिए अलिफ की छिट आ गई बस समझ इसलिए अलिफ की तो काफ को किससे मिलेंगे काफ से ज़बर कस फिर बोलिए मीम पेश मु काफ ज़बर का वतबारकस मुका फिर बोलिए 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 आगे देखिए वाव ज़बर वा ता ज़बर ता आइन अलिफ ज़बर खींचेंगे और दबाएंगे वता लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है खींचेंगे और या खाली है लाम खड़ा ज़बर ला वतआला जीम दाल ज़बर जद दाल पेश दू जद्दू 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 कफ ज़बर का जद्दू का जद्दू का वतआला जद्दू का फिर बोले फिर बोले फिर बोले फिर बोले फिर बोले फिर बोले वाव के ऊपर ज़बर को वाव ज़बर वा यहां देखिए लाम के ऊपर साथ में कौन खींचना कितना आगे देखिए यहां एक बारीक निशानी है तो फिर चार अलिफ खींचना लाम अलिफ मद ज़बर इसको मद कहते हैं मद की निशानी मतलब खींचने की निशानी लाम अलिफ मद ज़बर ला वाला हमज़ा ज़ेर लाम खड़ा ज़बर हा ज़बर हा वला इलाहा गैन के ऊपर ज़बर है जज़म वाला या है मद या लीन कौन लीन कैसे पढ़ेंगे और गैन को पूर पढ़ेंगे गैन या ज़बर गई रा के ऊपर पेश है और काफ के ऊपर जज़म है तो रा का पेश रुक गई और रुक गई और रुक वला इलाहा गई और रुक फिर बोले फिर बोले फिर बोले किताब से देखिए सुब्हानका अल्लाहुम्मा फिर बोले व बिहम्दिका
پھر بولے پھر بولے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ پھر بولے پھر بولے وَتَعَالَى جَدُّكَ پھر بولے پھر بولے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ پھر بولے پھر بولے یہ دعائے ثنا، اس کو خوب مشق کر کے آئیں گے، دیکھ کے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلے دن ہے تو ذرا آپ کو سمجھنے میں ذرا اونچ نیچ 19-20 رہے گا، اس کو ہم پھر کل سمجھائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم 3-4 دن سمجھیں گے تو آپ کے لیے قرآن ایزی ہو جاتا ہے۔ آج منگل ہے، پھر بدھ ہے، پھر جمعرات ہے، پھر جمعہ ہے، سنیچر بھی شاید 3-4-5 دن ہم اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنے کا ترتیب کو سمجھیں گے، پھر قرآن پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔